So this is the data. Okay, we call it as a bar graph. In statistics, we are commonly plotting a graph, and that we call it as a vertical bar graph. So there are various types. One by one, we will talk about a bar graph. So this is the data which is given to you. So the data which is collected in a various region in a month of April, and this is the data which is collected in that particular April month. Suppose region one, or take example, this is a one village, second village, third village, and fourth village. तो उसमें से हमने number of peoples they are you know present in that particular session. अगर ऐसा कोई data collect कर लिया है तो उसके बारे में हम बात करेंगे. So along the x-axis जो कुछ भी आपका detail आ जाएगा. Just right now we are talking about April month. So write down April. So region की जगह पे हम village भी ले सकते हैं. Village 1 2 3 4. Okay, next में हम edit करके देख देंगे आपको. And on y-axis this numerical quantity कितने बार present है. So अब हम क्या करते हैं, डेटा को थोड़ा एडिट करके देख लेते हैं. इन अप्रैल मंथ, सो नंबर ऑफ पीपल्स, ओके, 50, 75, 150, 150, and the next step is 175. So this is the data. Now let's see 75, 150, 150. So let's see, this is the 75. So यहाँ पे देख लो, this is 75. Next one 150. Next one 150, and last one, this is around 175. So likewise we plotted graph, okay, and that we call it as a bar graph. Now let's see according to the month what is the change which is observed. Now let's move to the April. Next one May. So this is the data for month of May. So let's once again just erase this data and just quickly observe the data which is given here. So first of all, let's think about what is the standard data. So we will go to the standard data for May month. See, 75, 100, 200, and last data is 100. Okay, now we are observing what type of graph will be there. So let's move to the graph. So let's see here, 75 is there. Next one, see, 75. Third, next one 100, next one 200, and once again 100 is there. So only we have to draw, find the limit. Okay, this is a 75, which is a maximum value, means we have to increase that bar graph up to that particular extent. उसके आगे नहीं जा सकते. For second one, let's go back to the data. अभी data थोड़ा check कर देते हैं. What is the data for you? Okay, first 75, second 100, 200, and 100. Let's go back. अब यहाँ पे देख लो. So for for region second, so the data is 100. So see, there is 100 and this is the data. So if we draw like this, so this is the second one. Now 200 is the data for the third graph. So draw like this and color it according to you, or according to the your convenience, for according to your wish. Just you color it in a different format. Now last one, थर्ड का रीजन, थर्ड का जो डेटा दिया हुआ है उतना है 100 है. तो मैंने क्या किया, जस्ट go through this scale, mark like this, and make a box. So this is the data for first region, which is 75, second region, which is 100. So I will write it here, 75, 100, here 200, and here is 100. So what is the key point? So whatever the detail of that particular village, place, number of students, classes, division, okay, village. So you write it on a x-axis,
and the total scale numerical data that we have to write it on a y-axis. Clear है? So likewise we have to complete the data. Similarly, just quickly we will you know move to the next data. थर्ड डेटा है जो हमें नेक्स्ट मंथ के लिए, अप्रैल हो गया, मई हो गया, अब जून के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज द डेटा. ओके, एडिट डेटा एडिट नहीं करेंगे, हम उसी डेटा पे बात करेंगे. सो 150 इज देयर, 75 इज देयर, नेक्स्ट वन 150 एंड 100 इज देयर. ओके, सो ये डेटा हमें दिया है. 100 मतलब 100, 150, 75 और 150 है. क्लियर है? सो लेट्स क्विकली गो बैक. जून के बारे में, जून के बारे में अगर बात करें तो पहला डेटा था वो हमें पता है. व्हाट इज द डेटा? 100. सो हियर 100 is there. Next one, here 150 is there, and 75. Here is a 75, and last one 150. So according to this scale, okay, according to this scale, just make a horizontal line like this, and then draw bar, vertical bar. Okay, so this is the region for, sorry, this is the bar for region A. This is bar for region B, C and D, या फिर 1 2 3 4 ऐसे भी आप बता सकते हो. क्लियर है? सिमिलरली जस्ट वी विल मूव टू द लास्ट वन. ओके, सो लास्ट बार देख लो. या दिस इज लाइक दिस, लाइक actually if you observe the data, each and every question is totally depends on the given data. So here given data is different, so definitely bar is different. जैसा मतलब डेटा मिलेगा according to that आपको यहाँ पे क्या ग्राफ मिलेगा. अब यहाँ पे पहले पहले डेटा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं. अब अपने हिसाब से तो डेटा देख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है. लेट्स चेक इट. 75, 100, 125 एंड लास्ट वन 200. ठीक है, सो डिफरेंस देख लो. 25 का डिफरेंस और लास्ट में 75 का डिफरेंस. चलो, नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट ग्राफ. फर्स्ट ग्राफ क्या है? 75. सो ऑब्वियसली here is 75. Actually, we don't have a graph paper, so we are not using graph paper, so you will not understand exactly. अगर आप ग्राफ पेपर यूज करते हो तो आपको करेक्टली वो समझ में आ जाएगा. बिकॉज मेरे पास अभी सॉफ्टवेयर में स्टैंडर्ड डेटा है तो उसी के हिसाब से मैं कर रहा हूँ. अभी लास्ट में क्या करूँगा मैं, हम अपने हिसाब से वैल्यू चेंज करेंगे और अपना ग्राफ देख लेंगे. सो रीजन सेकंड के लिए कितना है? 100 है. मैंने बोला है 100 से लाइन बनानी है ऐसे, फिर इसको वर्टिकल कनेक्ट करना है. नेक्स्ट वन 125. सो 125 ये यहाँ पे आ जाएगा, एंड लास्ट वन इज 200. ओके, सो लाइकवाइज आपको चार ग्राफ बनाने हैं. क्लियर है? नाउ जस्ट क्विकली हम एक एग्जांपल खुद अपना बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे. अब मान के चलो मुझे डेटा कुछ इस तरीके का चाहिए. मुझे चाहिए डेटा 50, 100 इस हिसाब से चाहिए. तो मैंने क्या किया, मुझे डेटा यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा. अब मैं अप्रैल का डेटा चेंज कर देता हूँ. ठीक है, सो फर्स्ट टाइम ऑन 50, बाद में मुझे चाहिए 100, नेक्स्ट वन 150 एंड लास्ट जो है वो मान के चलो मुझे चाहिए 200. ठीक है, सो दिस इज द डेटा. अब इस डेटा के अकॉर्डिंग में आपका अप्रैल का जो ग्राफ है वो देख लो कैसे आएगा. चलो, अभी मैंने डेटा फिल कर दिया तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमें इसका रिजल्ट भी मिल गया. तो ये हो गया आपका स्केल. स्केल देखो क्या है, 0, 50, 100, 150, 200. सो ऑब्वियसली एग्जाम में आपको ऐसा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके जस्ट वी हैव टू राइट इट हियर y axis, here we have to write a x axis. So for a region A and we are talking about a April month. Okay, just if अगर आपको देखना है तो देख लो डेटा कहाँ का है. So this is all a data we are talking about a, so April month का डेटा है.
लेट्स सी 50, 100, 150 एंड 200। तो हम अप्रैल पे भी फोकस कर रहे हैं और अप्रैल का जो कुछ भी ग्राफ है वो हम ग्राफ बना रहे हैं। क्लियर है? लेट्स चेक इट, अगर ये कॉपी होता है कि देख लेता हूँ मैं। अगर हो गया कॉपी, वेरी गुड। ओके, कॉपी हो गया। अब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। पेस्ट। ओके, चलो ये हो गया आपका डेटा। थोड़ा छोटा है बट इट्स ओके। सो 50, 100, 150। ओके, तो थोड़ा इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलो, सो डेटा भी यहाँ पे आपको मिला है। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ है क्या। So first reading is 50. So this is first observation 50. See, here is a bar 50. Second observation is 100. So here is 100. Third observation is 150. So here is 150. Fourth observation is 200. So here is 200. Clear है? So अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? So we have to write a scale. Okay. At the top जो है वो यहाँ पे आपको scale लिखना पड़ेगा on a नॉट अ एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपका वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमने क्या लिया है यहाँ पे 50 यूनिट लिया हुआ है। एंड सो रीजन वन, इसका ब्लू कलर वाला है वो रीजन वन होगा, ग्रीन कलर रीजन टू, रीजन थ्री एंड लास्ट वन रीजन फोर। तो ऐसे डिफरेंट कलर्स आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा विच कलर फॉर विच सब्जेक्ट, विच ग्रेड, विच रीजन। ठीक है? सो लाइकवाइज वी हैव टू राइट अ डेटा। क्लियर है? चलो, अभी फिर से और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसी के बेसिस पे। मतलब हम अब क्या करेंगे, जो एक स्कूल का डेटा कलेक्ट करेंगे और स्कूल के डेटा के हिसाब से हम क्या करेंगे, कितने परसेंटेज का उसका रिजल्ट है। ओके, तो वो डेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो, अभी मैं थोड़ा इसका डेटा एडिट डेटा कर देता हूँ। अप्रैल को मैं हटा के मान के चलो कोई भी स्कूल डाल देता हूँ, अपना SBP डाल दिया मैंने। चलो, नेक्स्ट वन, चलो RDM। ठीक है, ये तीसरा स्कूल मैंने डाल दिया। नेक्स्ट वन मान के चलो PK डाला है, PK जेम्स। एंड फोर्थ वन MJ डाला हुआ है। सो दिस इज द 4 स्कूल्स। ठीक है, अब 4 स्कूल से हम रिजल्ट, अभी रीजन एक मतलब मान के चलो 8th स्टैंडर्ड का रिजल्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड वन हम 9th का, थर्ड वाला है वो 10th का है, एंड लास्ट में जो है वो हम डेटा मान के चलते हैं फिर से वो 10th B का पकड़ के चलो। और ये let's talk about it. This is the data for 10th A. Okay, so this is the data. Okay, so number of, suppose the exam which is conducted out of 200, ये मान के चलो 200 आउट ऑफ 200 का एग्जाम था, उसमें से बच्चों ने कितना स्कोर किया है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है तो ध्यान में रखो। सो नाउ लेट्स गो बैक टू द, अभी SBB का रिजल्ट क्या देख लो, 50। ठीक है, 100 मतलब 8 के बच्चे का रिजल्ट 50% है। सॉरी, 8 के बच्चे का जो रिजल्ट है वो कितना है, मान के चलो 15 स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्रैक कर लिया, मान के चलो 200 बच्चे हैं एग्जाम में बैठे थे, तो कितने बच्चों ने एग्जाम क्रैक कर लिया, 50 बच्चों ने SPB के 8th स्टैंडर्ड में से। 50 बच्चे 9 में से 100 बच्चों ने एग्जाम क्रैक कर लिया है। अब 10th A में से 150 है और 10th B में से क्या है, 200 के 200 बच्चे एग्जाम में पास हो गए। क्लियर है? अब चलो दूसरे स्कूल के बारे में हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो, अभी दूसरे स्कूल के बारे में हम बात करेंगे।
ये जो दूसरा स्कूल है उसका भी डेटा हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमने RDM स्कूल रैंडमली ले लिया है। सो फॉर दिस, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स थिंक डेटा। सो 75, अब 200 में से कितने बच्चे यहाँ पे 8 स्टैंडर्ड के पास हो गए? 75। 9th स्टैंडर्ड के 100। अब 10th ए का तो भाई इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, 200 में से 200 बच्चे पास हो गए। अब 10th बी का रिजल्ट देख लो, 100 बच्चे यहाँ से पास हो गए। तो ऐसे आपको डेटा दिया जाएगा और उसके बेसिस पर से आपको क्या करना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब मान के चलो मैंने तीसरे स्कूल के बारे में देखा, तो तीसरे स्कूल का डेटा हमने ऑलरेडी यहाँ पे फिट किया है, और वो अगर डेटा अगर देखना है तो हम देख सकते हैं। प्लस सी द डेटा। पीके जेम्स का मान के चलो कितना है? 100, 150, 75 एंड 150। सो लेट्स गो बैक टू द पेज एंड जस्ट थिंक अबाउट इट। अब यहाँ पे जो डेटा है, सो 8 स्टैंडर्ड के बच्चे 100 बच्चे 200 में से पास हो गए। अब 9th के 150 पास हो गए। 10th ए का रिजल्ट बहुत ही बुरा लग रहा है कि 75 बच्चे पास हो गए, और 10th बी के भी 150 बच्चे पास हो गए। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा? ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मान के चलो मैंने MG स्कूल, महात्मा गांधी स्कूल जो हमने कंसिडर किया था, उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस केस में भी डेटा देख लो। हमने जो डेटा दिया था, ठीक है, तो क्या है डेटा इसके बारे में? MG स्कूल के बच्चे देख लो यहाँ पे 75, 100, 125 एंड 200। ठीक है, तो इतने बच्चे मान के चलो हमारे इस स्कूल से पास हो गए हैं इस एग्जाम में। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे आएगा? 75 स्टूडेंट दे पास फ्रॉम sorry MG college, but they belongs to 8th standard. So 75, नेक्स्ट वन 9th स्टैंडर्ड के 100 बच्चे पास हो गए। अब 10th ए के 125 एंड 10th बी के 200 बच्चे, मतलब आउट 100% रिजल्ट किसका है? 10th बी का है। क्लियर है? और 9th 9th का जो है रिजल्ट वो 50% है। सो लाइकवाइज हमें जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राफ जो है वो बनाना पड़ेगा। एंड फॉर दिस ग्राफ, ये जो स्केल है, ओके, दैट स्केल इज अ वेरी इसेंशियल फॉर ग्राफ। अगर स्केल गलत हो गया, आपका पूरा का पूरा ग्राफ गलत हो जाएगा। ठीक है, सो लाइकवाइज हमें ये जो ग्राफ है, बार ग्राफ है, वो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या करेंगे? जो